Okay. Uh, Good evening. Thank you for coming. Printmaking exhibition है. You have what I had to say about this exhibition. I'm not going to repeat. आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. मेरा खुद का printmaking introduction has happened in Sir JJ School of Art. He was my direct teacher. And in this room, I'm sure 80% of you know who is Nikam sir. I was just requested by Dr. Kanoria said ke, apart from the artist, the audience, they don't really know what sort of print it is, what is the medium. So I'm just taking this advantage, sir, क्योंकि निकम sir यहाँ पर है. I'll later talk about the unknown group. But first I'm requesting Nikam sir to take us through in one line whatever the medium it is, and then Anurag, if you share 2 words about this exhibition, and then inside. So when Gurmani told me that he wanted to do a show on printmaking, I thought it was very exciting because personally it's one of my favorite genres. I absolutely love prints. Technically, of course, I have very little knowledge. I enjoy the aesthetics of it. And so I'm also looking forward to this talk so I can understand something more technically. Printmaking is still, I think, underappreciated in India. So I'm glad that we have had this show, and I hope that in the years to come, printmaking comes alive again in the art market, and we have more practitioners because it's not taken off in the market as much as I think it should. It needs to be encouraged, and I'm glad that we are able to do that here. So thank you, and I'll ask Nikam sir to you. Dean sir, आपके साथ एक बहुत बड़ा ओके. ऑल्सो द अदर थिंग इज आई एम वेरी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने अलाउ करने के लिए. मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मैं पढ़ाई कर रहा था, बट आई नेवर रियली थॉट के स्कूल ऑफ आर्ट में मैं एक दिन जाऊंगा और कहूँगा सर आपका पूरा स्टूडियो इस्तेमाल करके एक प्रिंट पोर्टफोलियो बनाना है. द मोमेंट आई हैव अप्रोच डीन सर, very generously he said why don't you do it, there is no problem, in fact the studio is all pura le lo, kaam karo. So thank you for that opportunity and letting us coming into the school again. And I think 3 or 4 students in this group, the artists from this group are also from JJ School of Art. So that exhibition is workshop will start from 11th until 14th. 15th again we have a portfolio distribution here. This is one way we are trying to introduce that you must collect, but artists, मैं भी artist हूँ, पैसे वैसे होते नहीं, कहाँ से लेंगे, तो इस बार पहली बार फ्री में दे रहे portfolio. But try within your limited capacity to appreciate art, not just by saying this is a good art. If possible EMI में ले लेना, 4-5 किस्तों में पैसे देना, but दोस्तों के काम से खरीदना शुरू करो, रखो, वैसे ही जनरेशन बनते हैं आर्ट के. So that's how when I began. I started, in fact, यहाँ पे भी बहुत आर्टिस्ट होंगे जिनके मैंने actually bought in EMIs, like I paid in 3 times because I liked the work. I could not negotiate, but I took it. So if we all start today, I'm sure at some point the history of collecting printmaking will go somewhere. Last thing I would like to introduce, the hero of this evening is Atri, the founder of the Unknown Group, who I'm representing, remotely working for the last 5-6 years. बहुत मेहनती है, एक्चुअली बहुत मेहनत करता है, एंड आई थिंक आई हैव सीन हिम वर्किंग बिकॉज लास्ट 6-7 days इज दैट वी आर सिटिंग टुगेदर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. थैंक यू अत्री फॉर ब्रिंगिंग दिस इंटरेस्टिंग ग्रुप, एंड विदाउट फर्दर डिले रिक्वेस्टिंग द गुरुजी कि आप हमें एक बार दिखा दे. आई एम गोइंग थ्रू माई 2011 प्रेजेंटेशन फ्रॉम सर नाउ. मोस्टली इसमें 90% मेरे स्टूडेंट है, जेजे से, कैरागढ़ से, शांति निकेतन से. अब उनको फिर से प्रिंट मेकिंग के बारे में कुछ बताना बड़ा मुश्किल है. तो जो अननोन लोग हैं जिस फील्ड से, जो विजिटर्स आए हुए हैं आर्ट फील्ड से रिलेटेड, आर्ट लवर, उनको मैं थोड़ा सा ये जो क्या चीज़ है, जनरली आम आदमी को पेंटिंग्स ईजीली समझ में आता है. प्रिंट मतलब उनको लगता है कि ये जेरोक्स प्रिंट तो नहीं है, या ऑफसेट प्रिंट तो नहीं है. लेकिन जो आज ऑफसेट प्रिंट है
जो जेरोक्स प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका ये एंसेस्टर का पार्ट है। ये अगर हिस्टोरिकल पार्ट में आप देखोगे तो पहला किताब जो छपा था डायमंड सूत्रा, हीरक सूत्रा, वो प्रिंट मेकिंग के वुडकट से प्रिंट हुआ था, फर्स्ट बुक। और उस पीरियड से बाद में बाइबल प्रिंटिंग या इस तरह का जो प्रिंटिंग मटेरियल था, फ्रीडम के पीरियड में इंडिया में भी बहुत बार पोस्टर्स बनते थे वुडकट से। जो फेमस प्रिंट मेकर है कृष्णा रेड्डी, वो वुडकट से रात को प्रिंट करते थे, दूसरे दिन सवेरे गली मोहल्ले में लगते थे और पुलिस इंक्वायरी करती थी। तो बहुत बार वो कृष्णा रेड्डी जेल में भी गए हैं। तो एक समय ऐसा था कि जब आर्ट कॉमन पीपल के लिए परचेस करना बहुत मुश्किल था। ये जो वर्क है तो सेम कॉपी हम परचेस नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी वैल्यू भी बहुत थी। तब आर्टिस्ट लोगों ने ये जो प्रिंट करते थे उस मटेरियल को बोलते थे ग्राफिक आर्ट। आज भी प्रिंटिंग के लिए जो डिज़ाइन बनता है उसको ग्राफिक आर्ट बोलते थे। लेकिन जब ये ग्राफिक आर्ट उस वक्त आर्टिस्ट लोगों को लगा कि नहीं, ये जो वर्क है जैसे कि हेनरी मूर वगैरह, बहुत सारे रेम्ब्रा वगैरह, इस आर्टिस्ट लोगों ने ये काम किया हुआ है, तो ये वर्क एक से ज़्यादा लोगों को चाहिए और वो भी कम कीमत में चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तब उन्होंने ये जो ग्राफिक आर्ट है उसके तरफ टर्न हुए ये आर्टिस्ट लोग। और उसके बाद उन्होंने इसका प्रिंटिंग स्टार्ट किया। तब उन्होंने बोला कि इसको ग्राफिक आर्ट नहीं बोलेंगे, इसको प्रिंट मेकिंग बोलेंगे। तो ग्राफिक आर्ट और प्रिंट मेकिंग का चेंज यहाँ पे हुआ। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है, आप यहाँ से देखोगे। बेसिकली 3 तरह का प्रिंटिंग होता है। एक कार्विंग करके जो टूल्स से होता है, लकड़ी के ऊपर, रबर के ऊपर। दूसरा होता है केमिकल से मेटल के ऊपर। जो ऊपर से होता है उसको ऊपर कलर लगा के प्रिंट लेते हैं, जैसे कि कॉर्नर में वुडकट है, वो ऊपर का एरिया का प्रिंट होता है। दूसरा केमिकल जो होता है उसको केमिकल से इच करते हैं, जैसे कि जिंक प्लेट है, उसको इंटैग्लो प्रिंट बोलते हैं। और तीसरा होता है लिथोग्राफी। नियर अबाउट कुछ जो पुराने लोग हैं, शोले पिक्चर वगैरह जो थे, सिलसिला शोले वगैरह, वहाँ तक ये लिथोग्राफी के ऊपर ये पिक्चर के पोस्टर्स प्रिंट होते थे। अभी सेम टेक्निक है लेकिन ऑफसेट में कन्वर्ट हुआ। पहले पत्थर यूज होता था, जिंक प्लेट यूज होती थी, अभी एल्यूमिनियम प्लेट होती है, अभी पॉलिस्टर प्लेट यूज होती है। तो आर्टिस्ट लोग आज भी इसमें के डिफरेंट मीडियम जो अपने नेचर को अच्छे लगते हैं उस मीडियम का यूज़ करके वो प्रिंट करते हैं। उसमें से पहली बात, इंडिया में बहुत कम, ये जो यंग जनरेशन आप खड़ा है सामने, इनको प्रोमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत कम गैलरी आगे आती है, क्योंकि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि ये आर्ट वर्क कम कीमत में ज़्यादा लोगों को मिले। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो आज के गैलरी में कम कीमत वाला वर्क कोई रखने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका नुकसान होता है। एक पेंटिंग 10 लाख का बेचो तो उनको आराम से 3-4 लाख मिल जाते हैं, लेकिन प्रिंट में वैसा नहीं होता है। पहली बात तो मैं सर को और गौरमोनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट को और मेरे जो बेटे हैं उनको सपोर्ट किया, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, इसलिए थैंक यू। क्योंकि ये एक एज होती है उनको मॉरली सपोर्ट की। जो बहुत सारे जस्ट लास्ट ईयर पास आउट हुए, 2 साल पहले पास आउट हुए, कुछ इस साल पास आउट हुए हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे देखोगे एक वर्क भी दूसरे वर्क से जैसे मिलता नहीं है, हर एक वर्क अलग है। बहुत सारे पेंटर्स प्रिंट मेकिंग का यूज करते हैं पेंटिंग करने में, मैं अभी नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा। स्क्रीन यूज करते हैं, एचिंग भी यूज करते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते कि हमने प्रिंट का यूज किया, क्योंकि उनके पेंटिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। तो
यहाँ पे काफ़ी सारे वर्क है कि मोस्टली लाइन एचिंग है, एक्वाटिंट्स है, वुड कट है, सेरीग्राफ्स है, कोलोग्राफ्स है, तो हम देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। The artists are here. They all are wearing a badge called artist. आप और उनके नाम लिखा है उसमें. If you are interested in any particular medium, they themselves have done the work. I'm sure they will be able to explain it more better. And और कुछ भी मीडियम के बारे में अगर कुछ होगा तो मैं बात करूँगा आपसे। थैंक यू। please enjoy this show. Thank you, sir. And on 15th, we have a portfolio distribution ceremony. We are also creating that portfolio of 30 young printmakers. So we are going to do one portfolio. We are donating back to JJ School of Art. Couple we are keeping at the foundation. One we are donating to Dr. Kanoria for lending us the space, and rest of the portfolio goes to each artist. So that's their, I think, very first way of collecting each other's artwork. So please do come for that 15th also. Thank you.